प्रभु की आराधना करें, उनको धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह हमारे साथ है. We worship the Lord, we praise, we worship Him, we thank Him, we glorify Him, because He is our God, He is our Savior, the Lord who is with us always and every time. In all our sufferings, in all our failures, the Lord never leaves us. He is there with us. तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शलोम यहोवा आदोनाई, तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शलोम यहोवा आदोनाई. तेरी इच्छा से सभी तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए. क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे. मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ. उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा. हाथ को उठाकर हालेलुया, 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 Praise the Lord. Hallelujah. My precious brothers and sisters in Christ Jesus, welcome back once again to praise and worship the Lord through our way and through the scripture, through our prayers. Welcome to praise the Lord and thank Him. My precious brothers and sisters, today we are going to pray for these intentions that have been given to us. And the intentions are offered by Sarus for recovery from poor mental health. We are praying for Teresa, praying for her son Reynold to get the strength and receive the strength of the Lord to come out from all his bad habits. Priska asking inner healing and deliverance of family members from alcohol, smoking and unfaithfulness towards God. Sister Divya asking blessings for herself and prayers for younger brother and his family and her parents. She asked prayers for her younger brother Florentinus Daimari and the family. She also asked blessings on her parents and family members for peace. She asked blessings for Michael and for her brother for stopping to drink and so that they may be able to take up the family responsibilities. We also pray for Christine for her intentions, her husband to receive the job. We also pray for the intentions of Sister Ranjita for family blessing, good health of mom, for auntie to go lead a good Catholic life and to lead the family. And so we receive also prayers we offer to the Lord for the peace in family and for the healing in physical manner and for the emotional manner upon the family of Reshmi and for the protection of the family and blessings on new home and new shop, that is Master Mini Market. So blessings on the family. Sister Innocencia asks blessings and healing on Asha and Asim. Sister Jacinta asking prayer for the healing of Anish, 1-year-old child suffering from heart problem. Dharmu David asks blessings for healing of wife as she has stomach pain since a long time. Sister Annie FMA asking blessings and asking prayers for the fulfillment of intentions and needs of the Jorhat community in Nepal.
Yogdan asking blessings for speedy recovery of his mom, Eliza. Sister Kiran, MSMHC, asking for blessings on family. We have Sister Anima, MSMHC, asking blessings and deliverance for brother and his strength so that he can come out of bad habits of alcoholism and that they may have the desire for prayer and thirst for the Lord. Then we offer also intentions of Shashi for sons to be stronger in faith and to be blessed in education. And at the end, we offer the intentions of Sister Sandhya for the complete healing of her grandmother. This moment, let us ask the Lord and thank the Lord for this moment and ask the Lord to bless really all these intentions so that the Lord may receive these intentions in the name of Jesus. My precious brothers and sisters, you can extend your hands towards the screen this moment. And you and me, in the name of Jesus, agree for all the intentions that have been mentioned and all the intentions that we have in our own hearts, that the Lord may fulfill them by the infinite power of the name of Jesus, according to Matthew chapter 18 verse 19, as the scripture says, if two people are not agree upon something, my Father will surely grant it from heaven. In the name of Jesus, we agree and pray for all these intentions by the infinite power of the name of Jesus. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of whom, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. My brothers and sisters, what would you prefer? Should I speak in Hindi or English? What would you prefer? Maybe you can unmute your mic and tell me, what do you want me to speak in Hindi or English? You can speak in Hindi also, brother. Hindi. That is comfortable for English, Hindi, both, no English problem. comfortable. Okay, so all are No comfortable. problem. Okay. So I'll speak in Yeah. Hindi so that all will understand. Praise the Lord. Hallelujah. So the theme of today's session was the Lord, प्रभु ने केवल दवाइयों से नहीं, जड़ी बूटियों से नहीं, बल्कि प्रभु ने अपनी वचन के द्वारा प्रभु ने चंगा किया है। हम सभी को प्रभु ने अपने वचन के द्वारा चंगाई दिया है और उसी चंगाई के बारे में, उसी चंगाई की कृपा को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जब हम लोग इस चंगाई रिट्रीट में आते हैं, करिश्माई रिट्रीट में आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग इस मनोभाव से आएंगे कि हम इस करिश्माई रिट्रीट में जाएंगे तो हम लोग चंगाई पाएंगे, तो वह हमारा सबसे गलत मतलब है और हमें चंगाई भी नहीं मिलेगी। जब हम लोग इस मनोभाव से आते हैं कि प्रभु मुझे आप चाहिए, आपका वचन सुनना है, आपके वचन को अपने जीवन में लेना है, धारण करना है, जब इस मनोभाव से हम लोग आएंगे, स्वयं वचन के द्वारा, जिन वचन को हम लोग सुनेंगे उस वचन के द्वारा हम लोग चंगाई पाएंगे। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16वां वचन। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, 1 Corinthians chapter 3 verse 16। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Our body is the temple of the Holy Spirit। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन आज हमने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को क्या बनाया है? हमने इस मंदिर को केवल पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनाया, बल्कि इस शरीर को हम लोगों ने बीमारियों का मंदिर बना दिया है। हम लोगों ने इस शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं, बीमारियों का मंदिर बना दिया है। नाना प्रकार के बीमारियों को हम लोगों ने अपने शरीर में पाल के रखा है। लेकिन वचन कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जहां पवित्र आत्मा हो क्या कोई बीमारी रह सकती है? नहीं रह सकती। फिर भी हम लोग ईश्वर के पुत्र होने के कारण भी हम लोग अपने शरीर में बीमारी पाल के रखे हैं। इसको पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं, इसको हमने बीमारियों का मंदिर बना दिया है।
हम लोग देखते हैं जोहन का पहला पद, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 खोलेंगे। संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। सभी लोग अपने बाइबल को ले लीजिए, सभी लोग अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। केवल सुनने से नहीं, हमें लेकर पढ़ना भी है। जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। वचन पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। वचन कहता है कि जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। हम एक एक जन जो क्रिस्त यीशु में विश्वास करते हैं, हमें ईश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग ईश्वर के संतान बनते हैं, तो हम पर ईश्वर छोड़ कोई भी दूसरी चीज हम पर हावी नहीं हो सकती, कोई भी दूसरी चीज हम पर अधिकार नहीं ले सकता है। लेकिन हम लोगों ने बीमारियों को अपने ऊपर नियंत्रण लेने का अधिकार दे दिया है। हम लोग प्रभु को अपने जीवन का अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन नाना प्रकार की चीजों को और हर प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में, अपने शरीर में नियंत्रण देने का हम लोग अधिकार दे देते हैं। इसीलिए हम लोग इस शरीर को पवित्र आत्मा का नहीं बल्कि बीमारियों का मंदिर बनाते हैं। हम लोग मार्कुस का सुसमाचार देखेंगे। मार्कुस का सुसमाचार हम लोग का आज का ये 3 दिन का रिट्रीट का थीम क्या है कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा चंगाई किया। इसलिए अभी हम लोग वचन ही पढ़ेंगे। जितना वचन पढ़ेंगे, आप केवल ऐसा मत सोचिए कि आप केवल वचन पढ़ रहे हैं। आप जब वचन पढ़ रहे हैं, आप यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, जिस वचन के द्वारा प्रभु हमें चंगा करते हैं। उस चंगाईदायी वचन को हम लोग अपने शरीर में, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो हम लोग खोलेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 से 34 तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 से लेकर पढ़ेंगे। वचन में कहा जाता है, गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वह समुद्र में जाल डाले रहे थे, क्योंकि वह मछुआरे थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और वह तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ लोग बढ़ने पर ईसा ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वह भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें और उसी समय बुलाया। वह अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यहाँ वचन में हम लोग सुनते हैं कि यीशु ने जैसे ही बुलाया, वो लोग आ गए। उन्होंने एक क्षण कुछ नहीं सोचा, जैसे ही यीशु ने उन्हें बुलाया, वह उनके पास आ गए। जितने भी चीज थे, जितने भी काम थे, सभी को छोड़कर वो यीशु के पास आए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वह कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह आए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह
शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। वह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। और जब हम लोग ईश्वर के पुत्र पुत्री बनते हैं, वैसे ही हमें भी अधिकार है। इस वचन को भी हमें एक अधिकार के साथ यूज करना है अपने चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। जिस प्रकार से एक अधिकार के साथ यीशु ने उस वचन को कहा, जिस प्रकार से एक अधिकार के साथ यीशु ने वचन को बोला, उसी प्रकार से वही अधिकार के साथ ईश्वर के बच्चे होने के कारण हमें उसी अधिकार के साथ वचन को बोलना है, वचन को अपने जीवन में चलाना है। हम लोग पढ़ते हैं वचन 29 से, वही मार्कुस 1:29 से हम लोग पढ़ते हैं। सभी लोग अपने माइक्स को ऑफ कर लीजिएगा, कोई भी ऑन नहीं करेंगे। मार्कुस का 1:29 से, वह सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और एंद्रियास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी, बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए, उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग पड़ी। हम लोग देखते हैं पेतरुस की सास वहां बहुत बीमार थी, लेकिन जैसे ही यीशु का स्पर्श मिला वैसे ही वो चंगे हो गए। जैसे ही यीशु उनके पास आए, जैसे ही यीशु ने उनका हाथ पकड़ा, उनके जीवन में उन्होंने चंगाई की आशीष को महसूस किया। हम लोग दिन भर जब हम लोग बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, दिन भर हम लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर, लेकिन फिर भी हम लोग चंगाई प्राप्त नहीं करते हैं। फिर भी हम लोग इस चंगाई की शक्ति को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जब वचन को और पढ़ते जाएंगे, हम लोग जानेंगे कि हम कहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं, हम कहां पर गलत जा रहे हैं, हम लोग कहां ब्लॉक हो रहे हैं। क्योंकि आगे हम लोग जो प्रभु यीशु हमें वचन में कहेंगे, उससे हमें साफ पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ है, हम कहां पर अटक रहे हैं, हमारी चंगाई कहां पर अटक रही है। हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3, प्रेरित चरित्र अध्याय 3, Acts chapter 3 verse 1 onwards। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से हम लोग पढ़ते जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से हम लोग पढ़ते हैं। पेतरुस और योहन तीसरी पहर का प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वह उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक में के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, इस वचन को अच्छे से सुनिए। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। मेरे पास जो है वही मैं तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। कहा उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने कहा, ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया
वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। इस वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर पेत्रुस ने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास जो है मैं तुम्हें वो देता हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास यीशु का शब्द है, यीशु के नाम की शक्ति है। इसीलिए यीशु नाजरी के नाम से तू उठ खड़ा हो जा। और वहीं पर वो लंगड़ा खड़ा हो गया। हम लोग जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्यों चंगाई वो नहीं पाते हैं? क्योंकि हम लोग खुद उस वचन के अभाव में होते हैं, हम लोग खुद उस वचन को नहीं जाने होते हैं। इसलिए हम दूसरों को भी उस चंगाई शक्ति के अनुभव नहीं करवा सकते हैं। और मैं जैसे कह रहा था, हमारे जीवन में उस चंगाई छुटकारा कहाँ अटकी है, हम कहाँ गलत हैं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29, मैथ्यू 22:29। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29 वचन में प्रभु हमसे क्या कहते हैं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29, मैथ्यू 22:29। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में उनकी आराधना करते हुए उन्हीं के वचन को सुन रहे हैं। तो इसी वचन में शक्ति है जो हमारे अंदर प्रवेश करके हमें चंगाई कर रही है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29वें वचन में प्रभु कहते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना ईश्वर का सामर्थ, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। The Lord is saying you neither know the word, you neither know the word or the power of God। ना तुम ईश्वर के वचन को जानते हो ना तुम ईश्वर के शक्ति को जानते हो, क्योंकि ईश्वर की शक्ति हम तभी जान पाएंगे जब हम लोग वचन को ध्यान देंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को जिएंगे, वचन को क्लेम करेंगे। तभी हम लोग क्या होगा? तभी हम लोग ईश्वर के शक्ति का भी अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि वचन ऐसा नहीं कहता है तूने अपने जड़ी बूटी के द्वारा, लेकिन वचन कहता है प्रभु तूने जड़ी बूटी से नहीं बल्कि अपने वचन के द्वारा चंगा किया है, अपने वचन के द्वारा, किसी और चीज से नहीं, अपने वचन के द्वारा। वही कहता है स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20, साम 107 वर्स 20, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया है। उसने अपना वचन भेजकर, जितना वचन पढ़ेंगे उतना अभिषेक हमारे जीवन में आएगी, जितना वचन हम लोग पढ़ेंगे उतना अभिषेक हम में आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये चंगाई करने की जो अभिषेक है, क्या केवल वह पेत्रुस के पास था, केवल यूहन्ना के पास था? हम लोग सभी बपतिस्मा के द्वारा यीशु के शरीर में एक हो जाते हैं, और यीशु के शरीर में एक हो जाने के कारण प्रभु वही अधिकार हमें भी देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अधिकार दिया। क्या के ऊपर अधिकार दिया? सभी शैतानी शक्ति को निकाल फेंकने का अधिकार दिया है, और सभी रोगों को चंगा करने का अधिकार दिया है। केवल 12 चेलों को नहीं, हमें ही, क्योंकि हम भी वही यीशु के शरीर में एक होते हैं। इसीलिए जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, वचन को जिएंगे, क्लेम करेंगे, वचन के द्वारा ही और चंगाई होती जाएगी, वचन के द्वारा ही और चंगाई होती जाएगी। क्योंकि वही शब्द ने देह धारण किया। इस पूरी संसार को पिता परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा रचना किया, और शब्द के द्वारा ही सब कुछ हम लोग चंगाई छुटकारा देख सकते हैं। और इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, Hebrews 4:12, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 क्या कहता है कि ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त
जीवित है और किसी भी दूधारू तलवार से तेज है। The word of God is alive and active and sharper than the double-edged sword. दूधारू तलवार से तेज है। सभी जो हम लोग, जितने भी लोग अगर किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र और विचक्राफ्ट के कारण हम लोग कोई भी अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं, परिवार में हम देखते हैं विचक्राफ्ट है, किसी ने कुछ कर दिया है, उन सभी को आप तोड़ सकते हैं। क्या के द्वारा? वचन के द्वारा। क्योंकि वचन क्या कहता है? वो दूधारू तलवार से भी तेज है। और हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं यिर्मयाह के 23 में प्रभु कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रभु कहते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है। जब हम लोग इस वचन को क्लेम करते हैं क्या होता है पता है? जब हम लोग इस वचन को क्लेम करते हैं ना, जो वचन की अग्नि है वो अग्नि हमारे शरीर से सभी रोग की शक्तियों को जला के राख कर देता है। और आगे वचन कहते हैं, प्रभु कहते हैं वह उस हथौड़े की तरह है। एक हथौड़े की तरह है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन वो जो हथौड़ा है, सभी रूप के विचक्राफ्ट को, जंत्र मंत्र, जादू टोना, श्रापों को तोड़कर प्रभु टुकड़े टुकड़े कर देगा अपने वचन के द्वारा। किसी चीज से नहीं, अपने वचन के द्वारा। जब शैतान यीशु के पास आया परीक्षा लेने के लिए, जब यीशु कहां पे थे? रेगिस्तान में थे। उस समय यीशु ने क्या किया? जब शैतान आया उन्होंने पत्थर उठाकर उसे नहीं मारा। यीशु ने क्या किया? यीशु ने वचन के द्वारा उनके साथ लड़ाई की है। और आपको क्या लगता है केवल शैतान यीशु के पास आए? आज भी शैतान हमारे आसपास घूम रहा है। कहां पढ़ते हैं हम? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम लोग पढ़ते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। शैतान हमारे आसपास एक सिंह की तरह घूम रहा है, बाघ की तरह घूम रहा है। शैतान देख रहा है कि कब ये कमजोर पड़े, कब मैं इसे पाप में गिराऊं। शैतान केवल एक चांस ढूंढ रहा है कि कब ये व्यक्ति पाप में फंसे, कब ये व्यक्ति कमजोर पड़ जाए। एक बाघ के रूप से हमारे आसपास घूम रहा है, फिर रहा है। लेकिन जब हम लोगों के पास ये वचन की शक्ति है, जब हमारे पास इस वचन की शक्ति है, हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन से सभी शैतान की शक्तियां टूट जाएंगी। सभी शैतान की शक्तियां टूट जाएंगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में भी कहता है। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? कि तुम आत्मा का तलवार धारण करो। तुम आत्मा का तलवार धारण करो। और वो आत्मा का तलवार क्या है? वो आत्मा का तलवार है ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द ही हमारे तलवार है, जिसके साथ हम लड़ सकेंगे। शैतान के साथ हम लड़ सकेंगे इसी आत्मा की तलवार के साथ। पवित्र आत्मा में जीने का मतलब केवल हालेलुया कहना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी इस बात को बहुत बार कहा है, हमको याद करना है, याद रखना है, इस बात को हमें याद करना है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं तो आत्मा में जीना मतलब केवल हालेलुया प्रार्थना करना, आत्मा में जीना मतलब केवल विजन देखना, केवल संदेश पाना, केवल चंगाई करना, छुटकारा देना नहीं। अगर आप सोच रहे हैं ये आत्मा में जीने का मतलब है तो आप गलत हैं। क्योंकि आत्मा में जीने का मतलब पहले भी मैंने कहा है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5, फिलिपियों के नाम, एफिसियों नहीं, फिलिपियों के नाम का पत्र, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 इन इंग्लिश बाइबल, इन हिंदी इट इज 5। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5वें वचन में हम क्या, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5, अपने मनोभाव को, आत्मा में जीने का मतलब यही है, अपने मनोभाव को हम भी यीशु के जैसा बने, हमारा मनोभाव भी यीशु का जैसा बने। हम लोग दिन
भर रात भर प्रार्थना तो करते हैं, लंबा लंबा प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या वो प्रार्थना हमारे जीवन में दिख रही है? कभी कभी हम लोग केवल प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को जब हम लोग जीने के लिए आता है ना, हम लोग उसी में गिर जाते हैं और हमारा प्रार्थना कुछ काम का नहीं होता है। अगर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना हमारे जीवन में भी झलकना चाहिए, उस प्रार्थना को हमारे जीवन में भी झलकना है। और झलकना कैसे है? जब हम वचन के अनुसार जिएंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करेगी। जब हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगी और उस सामर्थ्य के द्वारा हम लोग ईश्वर के वचन को जी सकेंगे। और जब ईश्वर का वचन हमारे जीवन में झलकेगा तब हम लोगों का जीवन ही कुछ दूसरा होगा। प्रार्थना उस समय असली रूप से हमारे जीवन में झलकेगी। इसलिए हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि केवल प्रार्थना करना, प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस प्रार्थना को जीना यही एक चैलेंज है। और जब प्रार्थना को हम लोग जिएंगे तब हमारे जीवन में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा। तो प्रभु को स्तुति करते हुए उनको धन्यवाद देंगे। तो वचन कहता है कि जिस आत्मा ने ईसा मसीह को मृत्यु में से जिलाया है, उठाया है, पूर्ण जीवन जीवित किया है, वही आत्मा हम में और आप में है। और इसी आत्मा के द्वारा इतने सारे चंगाई होते थे, छुटकारा होते थे। जब पेतरुस ने कहा यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही वो उठ खड़ा हुआ था। तो अगर वही आत्मा हम में है तो क्या हम लोग अपने शारीरिक बीमारियों को निकाल कर क्रूस के नीचे नहीं फेंक सकते? हम लोग केवल चाहते हैं इसके पास जाना, उसके पास जाना, वो बहुत प्रार्थना करते हैं, उनके पास जाएंगे, उनके प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई पाऊंगा, उसके प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई पाऊंगा। लेकिन हमारे ही पास जो दवाई है उस दवाई को हम लोग नहीं ले रहे हैं। वो दवाई क्या है? ये वो दवाई है ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द ही हमारे जीवन की दवाई है। जब इस दवाई को हम लोग लेंगे सभी बीमारियां हट जाएगी, दूर हो जाएगी। वचन में शक्ति है, जीवन देने की शक्ति है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो एक दादाजी मर रहे थे, वचन के द्वारा वो उठ खड़े हो गए, उन्होंने चंगाई पाई है वचन के द्वारा, कोई चीज के द्वारा नहीं। डॉक्टर लोगों ने भी उनके दवाई को बंद कर दिया क्योंकि वो लोगों ने कहा शाम तक ये दादाजी मर जाएंगे। लेकिन जब परिवारजनों ने वचन पढ़ाना तब उन्होंने चंगाई महसूस की। अब ये सेशन खत्म होने वाली है। जिस लिंक को लेकर आप आए थे उसी लिंक को फिर से प्रेस करके आप लोग आइए। जिस लिंक को आपने प्रेस करके आए थे ना, ये सेशन खत्म होने वाला है, उसी लिंक को दबाकर आप फिर से इस सेशन में आ सकते हैं। ठीक है, जिस लिंक को हम लोगों ने प्रेस करके आए थे उसी लिंक को हम लोग प्रेस करके आएंगे। ये सेशन खत्म होने वाला है।